हेलो। आवाज आ रही है? हम ना डायरेक्टली रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के क्वेश्चंस ही करेंगे। मैं थियरी नहीं लूंगा, ठीक है? डायरेक्टली सॉल्व द क्वेश्चंस। इसमें 12th की लगेगी ना? सेकेंड।
ठीक है, स्टार्ट। क्वेश्चंस ज्यादा हैं तो हम 20-20 क्वेश्चंस लेंगे एक जन से, 20 या 20 to 25। स्टार्टिंग के कुछ आंसर्स दिए हुए हैं, बट स्टिल यू ट्राई टू आंसर। स्टार्टिंग के जितने दिए हुए हैं वो मैं डायरेक्टली डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है, टिल 61। तो what are morphological and embryological marvels? The morphological and embryological marvels are is flower, right? The answer is flower. मेरा पेंसिल ही नहीं चल रहा, आज सब गड़बड़ हो रहा है। पहला आंसर इज व्हाट डैश आर morphological and embryological marvels. It is flower. Now what they're saying कि dash and dash changes initiate the development of floral primordium. तो इसमें hormonal और structural आएगा। Inflorescence are formed after appearance of flower. True or false? It is false. Inflorescence flower बनने के पहले ही मतलब हो जाता है। A three-dimensional cut section of an anther is shown in diagram question 1. Label the things. What is A? Is what? Pollen grain. B is pollen sac. And C is what? Line of dehiscence. C represents line of dehiscence. Right. Next is what are the parts of stamen? Stamen has two parts. That is anther and filament. You always remember, यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा चीज याद रखना कि एंथर और फिलामेंट के बीच में एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कनेक्टिव कहते हैं। दिस कनेक्टिव हेल्प्स इन कनेक्टिंग द एंथर विद द फिलामेंट। नाउ विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट इज व्हाट द प्रॉक्सिमल या फिर डिस्टल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच्ड टू व्हाट। प्रॉक्सिमल या फिर डिस्टल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस और पेटल ऑफ अ फ्लावर। नाउ द टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज इट इज बाइलोब या फिर यूनिलोब, तो इट इज बाइलोब। यू नो इट इज डाइथिकस, दो तीखा होता है। तो लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव्स रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग द थीका। थीका को सेपरेट कौन करता है? लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव्स। एंथर कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी माइक्रोस्पोरेंजिया? तो इट कंसिस्ट ऑफ ईच एंथर कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, हेंस इट इज आल्सो नोन एज tetrasporangiate, right? Now each lobe contains how many microsporangia? 2 microsporangia develop further and become what? Pollen sac. Correct. A transverse section of young anther is shown in question 2, label A to F. So what is A? A is connective. मैंने बताया था ना, connective connects anther with the filament. B is epidermis. C is endothecium. And D is what? D is tapetum. Sorry, E is tapetum and D is what? Pollen sac. This is pollen sac. And it is middle layers. Epidermis, endothecium, middle layer, mesocarp, microspore, or tapetum. Wall layers of microsporangia are what they are: outermost, epidermis, endothecium, middle layer, and tapetum. A typical microsporangium is oval in outline. No, it is circular in outline, not oval. Tapetum nourishes the developing pollen grain. True. The outer three layers perform the function of protection and dehiscence. Dehiscence मतलब rupturing and release of pollen grain. Rupturing
And what release of pollen grain? Tapetum have light or dense cytoplasm. Tapetum has dense cytoplasm and there has more than one nucleus. Tapetum is multinucleated cells. What is the function of tapetum? Tapetum function is it provides nourishment. Middle layer helps in dehiscence. When the anther is young, a group of compactly arranged cells called sporogenous tissue occupies the center of each microsporangium. Only 5 cells of sporogenous tissue is capable of giving rise to microspore tetrad. मतलब कुछ microsporogenous tissue के ही cells जिन्हें microspore mother cells कहते हैं will give rise to what microspore tetrad. This is false. सारे बना सकते हैं मतलब all cells are capable of giving rise to microspore tetrad. Microspore mother cell is also called pollen mother cell or sporogenous tissue. When two anther lobes are attached to each other by tapetum, ठीक है हाँ. Endothecium helps in dehiscence of anther due to their hygroscopic nature. Hygroscopic means they can absorb water. Tapetum surrounds the sporogenous tissue. This is true. What is microsporogenesis? आवाज नहीं आ रही है. आ रही है आ रही है। ठीक है. सर आप रिवाइज नहीं कराओगे क्या? नहीं राहुल सर के हम डायरेक्टली क्वेश्चंस करेंगे. एक्चुअली कंटेंट में डिफरेंस हो जाएगा तो प्रॉब्लम होता है ना, इसलिए. सर ठीक है क्योंकि पढ़ा नहीं है ना। नहीं वैसे भी ये डायरेक्टली हम एनसीईआरटी तो करते हैं ना, बायो है वन एंड द सेम थिंग. सर लेकिन रिवाइज नहीं किया रिवाइज. अरे तो आप एनसीईआरटी लेकर बैठकर भी आंसर कर सकते हो ढूंढ ढूंढ कर. यही तो रिविजन हो जाएगा. ठीक है ठीक। ठीक है. As the anther, what is microsporogenesis? Microsporogenesis means it is formation of microspores from pollen mother cells, and with the help of meiosis it occurs. As the anther matures and hydrate, the microspores dissociate from each other and develop into what? Pollen grains. This is true. A few stages of a microspore maturing into pollen grain are shown in diagram. Question 4. Identify A, B, and C. So what is A? This B is what it is, vegetative cell. And C is what? Generative cell. This is correct. ठीक है. Now this could be A. A is what? एनसीईआरटी में दिया है ये। क्या दिया है एसिमेट्रिक देखो. स्पिंडल. अच्छा हाँ, दिस इज एसिमेट्रिक स्पिंडल स्पिंडल दिया फाइबर्स है दे आर सर। टॉकिंग. हाँ ये देखो, ये स्पिंडल फाइबर्स होते हैं. स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं पता है? एसिमेट्रिक स्पिंडल्स. स्पिंडल फाइबर्स का मतलब होता है ना, मैं जब आपको सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा तो सेल डिवीजन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एक स्टेज होता है जिसे मेटाफेज कहते हैं. तो वो मेटाफेज में ना क्रोमोसोम्स ना सेंटर में आ जाते हैं, और इन क्रोमोसोम्स को तोड़ने के लिए यहाँ पे सेंट्रियोल्स होते हैं. आपने ये स्पर्म में भी पढ़ा होगा कि स्पर्म के अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं. तो ये सेंट्रियोल्स ना ऐसे कुछ स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं. अगर वो पूरे सेल में बना रहे हैं ना तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल स्पिंडल्स. इनमें क्या बन रहा है? आधे में बन रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल स्पिंडल. ठीक है. ठीक। 30. Sorry, a few stages of microspore maturing into a pollen grain. अच्छा ये तो कर लिया. Pollen grain are released with the dash of anther. Dehiscence of anther. Dehiscence मतलब फटेगा तभी pollen grain बाहर आएगा. Pollen grain represent what? Male sporophyte या male gametophyte? Obviously gametophyte, क्योंकि उसके अंदर गैमेट बनता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Pollen grain measures about what millimeter in diameter? 25 to 50 millimeter in diameter.
its wall, pollen grain wall is single layered, नहीं, it is double layered. Double layered, right? Pollen grain का यस सर। outer layer is exine and inner layer is what? Entine. The outer hard layer called exine and it is made up of what? गलत लिखा है इसने. Outer exine layer is made up of what? Sporopollenin, right? स्पोरोपोलिन। हाँ. And what is sporopollenin? It is non-biodegradable complex polysaccharide. Sporopollenin is one of the most resistant organic material known. This is the answer, right? Sporopollenin. No enzyme that degrades sporopollenin is known so far. सही है ये. अभी तक उसको तोड़ने वाला कोई एंजाइम नहीं मिला है. Part of exine where sporopollenin is absent, it is known as what? Germ pore. Pollen grains are well preserved as fossils due to what? Sporopollenin. Exine और intine exhibit fascinating array of pattern and design. सही बात है. अगर आप एनसीईआरटी में डायग्राम में देखोगे तो आपको पॉलन ग्रेन्स के बहुत सारे डिजाइन्स या फिर पैटर्न्स नजर आएंगे. कहीं स्टार शेप्ड है, कहीं कांटे जैसा है, अलग अलग चीजें दिखेंगी आपको. ठीक है. एक्साइन शो करता है. इंटाइन इज थिन. सही है. इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन. मेच्योर पॉलन ग्रेन कंटेन्स 2 सेल्स, नेमली कौन कौन से? बड़े सेल को वेजिटेटिव एंड छोटे सेल को जनरेटिव. विच वन इज बिगर? वेजिटेटिव सेल. irregular shaped nucleus is present in vegetative cell and vegetative cell has what? Reserve abundant food material. ये भी true है. generative cell is spindle shaped. generative cell और vegetative cell कौन सा floats in the cytoplasm of generative cell? Floats in the cytoplasm of vegetative cell. generative cell has dense cytoplasm and nucleus. This is true. In less than 60% of angiosperms, 60% of angiosperms से कम, pollen grains are shed at 3-cell stage. सही है. गलत लिखा है। हाँ सॉरी. 40% 40 है ना? हाँ हाँ 40 है. 40% of angiosperms pollen grains are shed at 3-cell stage. हाँ. वरना ये 2-cell stage में shed होता है और further development होता है वो स्टिग्मा पे होता है. Generative cell divide to give 3-cell stage. Yes, जिसमें 2 male gametes होते हैं. Pollen grain was asthma and bronchitis. True. Carrot grass, also called Parthenium, came into India as contaminant with imported what? Wheat. Parthenium do not cause pollen allergy. गलत. ये contaminant था. ये इसने करा था pollen allergy. Pollen consumption has been claimed to increase performance of athletes and race horses. ये race horses आएगा. आपको ये चीज पता है ना? Pollen grain consumption has been increased in the recent year to increase the performance of athletes and race horses. Correct? हाँ सर. Pollen grain have to land on stigma before they lose viability if they have to bring about fertilization. True. Pollen viability depends on preventing temperature and humidity. Yes, pollen grain कितने दिनों तक viable रहेगा ये किस पे depend करता है? तो it depends on temperature and humidity. In rice and wheat, pollen grains lose viability within 30 minutes. Yes, correct. Families whose pollen remains viable for months are what? Rosaceae, Solanaceae, and Leguminosae. इसको कैसे याद रख सकते हो? पॉलन ग्रेन, इसका ट्रिक बना सकते हो आप. पॉलन ग्रेन जो है वो अपनी वायबिलिटी मंथ्स में लूज करते हैं. तो आप बोलोगे रोज लेग्यूम्स के सोले खाते हो आप, छोले खाते हो ऐसे. तो रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलनेसी. Pollen grains are stored in liquid nitrogen for years. Liquid nitrogen temperature is what? -196 degrees Celsius. And this type of preservation is known as what? Cryo preservation. ठीक है. Pollen banks cannot be used in crop breeding. क्या हो गया? क्रायो प्रिजर्वेशन वाला एनसीईआरटी में नहीं है ना? नहीं, ये याद रखना है बेटा आपको. ठीक है. हाँ सर. हाँ सर। Yes, pollen banks cannot be used in crop breeding program. False. Pollen grain को हम यूज कर सकते हैं. Now you all will answer. हाँ ट्राई करो. सर. एनसीईआरटी साथ में लोगे चलेगा, क्योंकि ये एक रिवीजन की तरह ही होगा.
ठीक है, फर्स्ट आदित्य। अरे मैं ही क्यों फर्स्ट होता हूँ? तो नाम ही ऐसा रखा है, चेंज कर दो, तिवारी आदित्य अगली लिखा बार करो। तिवारी पहले लिखूंगा। हाँ वही। हाँ, सर ये बोलो तो जो सिक्स। जो पढ़ा था आपने वही पूछ लिया, लिख दिया आपने पहले ही। पहले से ही लिखा हुआ था इसीलिए मैंने नहीं पूछा आदित्य। अभी ये भी इजी अभी है, फीमेल ये, पार्ट इज इजी। हाँ ठीक है, ट्राई करूंगा। A dissected flower of hibiscus is shown in question 5. Identify the parts labeled as A, B, C, D. A is what? ये क्या है? ये तो सर वो तो एग्जाम्पल था ना एनसीईआरटी में, सिनकार्पस का टाइप का। नहीं नहीं, ये वाला आदित्य, ये जो लेबल कर रहा हूँ, कौन सा क्वेश्चन ये 6? डायग्राम। अच्छा हाँ, 5 फिफ्थ वाला, ये क्या चीज है ये सर? ये तो अच्छा पढ़ाया ये होगा ना सर ने। हाँ हाँ, ये तो वो है फीमेल वाला गायनोशियम है। तो हम्म। ऊपर क्या है? ऊपर होता है सिग्मा, स्टाइल सिग्मा, ओवरी। स्टाइल, स्टाइल ओवरी, और ओवरी, डी, डी क्या है? थैलेमस। थैलेमस, ठीक है। A multicarpillary syncarpous pistil of a flower is shown in. Identify the species labeled as A and B. A and B? एन बी, ये 6 वाला। अच्छा हाँ, तो आइडेंटिफाई द पार्ट्स ए एंड बी, ये कौन से स्पीशीज में मिलता है सिनकार्पस? सिनकार्पस कौन सी स्पीशीज में मिलता है? पपाया? नहीं, पेपरवर। पेपावर, सॉरी, वही पपाया बोल दिया गलती से। और ये किसमें मिलता है एपोकार्पस वाला? ये ये तो उसमें मिलता है, रोज रोज में। नहीं, ये सब रटा था मुझे, ये सब। क्या आएगा आदित्य? ये वो माइकल आल, मैंने कुछ ऐसा रटा था। माई का लाल क्या? हाँ हाँ माइकेलिया सर, शायद कुछ है मिशेलिया ना। है। हाँ हाँ मैंने इसको माइकेलिया है सर। हाँ, हम्म, ये माई के लिया है, यस। माइकल आल करके रटा था। ठीक है। हम्म। ठीक है। अगला इसमें बताओ। ए और बी क्या है बताओगे आदित्य? तो बन तो वो रहेगा ना, तो सबके स्टिग्मा जुड़े हुए होंगे शायद। पे स्टिग्मा होगा शायद, सबके स्टिग्मा जुड़े हुए हैं। बी पता नहीं क्या। बताओ, ट्राई करो। स्टिग्मा के नीचे स्टाइल है, स्टाइल के नीचे ओवरी है, तो ओवरी होगा। हम्म। अरे वाह, तुक्का सही है। अगला पूछे सर। ठीक है, अ मल्टी कार्पिलरी, ये तो ये भी कर लिया। मोनोकार्पिलरी कंडीशन मींस व्हाट? मोनोकार्पलरी, एक ही कार्पल होगा। यस, पिस्टल हैविंग ओनली वन कार्पल, राइट? मतलब हम्म, ओव्यू gynoecium having an only one carpel. हाँ, Pistils may be fused together to call what? सिन Thin कार्पस, carpus, right? और फ्री कॉल्ड एपोकार्पस। हाँ, और फ्री रहेंगे तो एपोकार्पस, the basal bulged part of pistil is what? ओवरी, और ओवेरियन कैविटी वाला ओव्यूल है Very good. शायद। Ovarian cavity is called as? ओव्यूल। Hmm. Placenta is located outside the ovarian cavity. True or false? प्लेसेंटा इज अच्छा ओवेरियन हाँ, कैविटी के बाहर, तो ओव्यूल के बाहर है ना। ट्रू ovule. है। Placenta is located outside the ovarian cavity. ट्रू है ना। हेलो। हाँ, placenta is located outside the ovarian cavity. नहीं आदित्य, नहीं एक नहीं। सेकंड, वो ओव्यूल को जोड़ता है, ठीक है, तो ओव्यूल के अंदर होगा। हम्म, फॉल्स तो आएगा। ठीक है, तो फॉल्स है। मेगास्पोरेंजिया आर आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोर, मेगास्पोरेंजिया, हम्म। मेगास्पोर मदर सेल क्या होगा? नहीं, फीमेल गैमेटोफाइट ना। फीमेल गैमेट। मेगास्पोरेंजिया arises from placenta. Megasporangia arises from placenta. False. ओव्यूल, ओव्यूल, ओव्यूल। अच्छा ओव्यूल है क्या? मेगास्पोरेंजिया अराइज फ्रॉम? प्लेसेंटा। हम्म। मेगास्पोरेंजिया आर commonly called ओव्यूल हो गया, तो मेगास्पोरेंजिया। ठीक है, एपोकार्पस एग्जांपल इज व्हाट?
बता तो दिया था। हाँ माइकेलिया। एंड तो सर इसमें सिनकार्पस। रोज ये सब भी आएगा ना? रोज, माइकेलिया, लोटस। हाँ वो भी आएगा बट यहाँ के हिसाब से देना है इस। मैंने ठीक है। सिनकार्पस, पेपरवर, हिबिस्कस तो पता ना। हम्म पेपावर एंड माइकेलिया आर व्हाट? मोनोकार्पिलरी। फॉल्स। फॉल्स, यस दे आर मल्टी कार्पिलरी। मल्टी करते। सिंगल ओव्यूल इज प्रेजेंट इन एक ओव्यूल तो मोनोकार्प। हम्म उसका एग्जांपल बताना है। सिंगल ओव्यूल इज प्रेजेंट इन, हाँ मोनोकार्पिलरी के एग्जांपल। इन्होंने ये भी इंक्लूड कर लिया मॉर्फोलॉजी भी। अरे मोनोकार्पिलरी। इसका एक क्या है सर? कार्पल वाले कौन कौन? वीट, नहीं, एडी वीट, पैडी, हाँ वीट पैडी एंड वो सब है। मैंगो। हाँ। मल्टीपल ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन, वही जो बता रहे हो आप। कौन सा वाला? मल्टीपल ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन। सर आपका आवाज कट रहा है कि मेरा नेट धीरे चल रहा है? नहीं नहीं, आवाज कट रहा होगा शायद, मेरा नेटवर्क का थोड़ा हाँ सर, issue आपका है। आवाज कट रहा है। समझ ही नहीं पा रहा हूँ। थोड़ा सा इशू है आवाज का। अभी आ रहा है क्या आवाज? हाँ अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल इज मल्टी सबसे ज्यादा कार्प, कॉमन मल्टी कौन सा कार्प। ओव्यूल है? आदित्य, एनाट्रोपस। हाँ एनाट्रोपस, और डायग्राम के नीचे लिखा है ना, याद है। अरे Type of division टाइप in ऑफ which डिवीजन। karyokinesis or nuclear division is in a cell is not followed by immediate cytokinesis. इस टाइप के डिवीजन को क्या कहते हैं? द टाइप ऑफ डिवीजन इन विच कार्य नॉट साइटोकाइनेसिस। अच्छा ये तो आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ाया था सर। हाँ वेरी गुड आदित्य, बताओ क्या है? तो उसमें आपने पढ़ाया था, मेरे को ये पूरा इस चैप याद है कहाँ लिखाया था। ये याद नहीं आ रहा लेकिन। इस चैप्टर का भी है आदित्य। अच्छा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन शायद। वेरी गुड, इसमें तो सिर्फ हाँ न्यूक्लियस याद है। डिवाइड हो रहा है ना। फ्री हाँ याद है, न्यूक्लियर याद है। माइटोटिक डिवीजन। हम्म। एनाट्रोपस ओव्यूल का मतलब क्या होता है? सिंगल ओव्यूल। नहीं, द अरे ओव्यूल हार्ड पार्ट है टिल्टेड, ये, इसको पढ़ना पड़ता है। the ovule tilted by 180 degrees is known as anatropous ovule। 180 डिग्री का? ये नहीं पढ़ा है सर ने आप लोग को? सर ने इन्वर्टेड ओव्यूल लिखा है। हाँ तो टिल्टेड बाय 180 डिग्री का मतलब ही इन्वर्टेड ओव्यूल होता है ना। नहीं पता सर ऐसा ये होता है? सब। ये ठीक है। पता पहली होना बार पढ़ा। चाहिए, ये पता होना चाहिए। ये लोग ये टेक्स्ट बुक में ऐड कर लेना आप लोग, ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। एनाट्रोपस ओव्यूल का मतलब ऐसा ओव्यूल जो टिल्ट हो चुका है 180 डिग्री से। उल्टा घूम गया है। हाँ उल्टा घूम गया है, उसी को तो इन्वर्टेड ओव्यूल बोलते हैं ना। सर को ये भी बताना चाहिए था। ठीक है। 80, a diagrammatic view of anatropous ovule is shown in figure, label the parts। what is A आदित्य? क्या ए है यार? प्लासेंटा होगा। नहीं। अरे सर, नहीं हाइलम, हाइलम। हाँ क्योंकि देखो ना ये पूरा बॉडी हाँ ऑफ द दोनों का ओव्यूल। जंक्शन है बीच में। हाँ जंक्शन। अरे मैं एनसीईआरटी नहीं खोला हूँ, मैं ऐसे ही बता रहा वेरी गुड, सही है ना हाइलम। फिर क्या है, बी क्या है हूँ। बोलो? हाइलम है। बी प्लासेंटा। वेरी गुड। सी क्या है बोलो? फिनिकल। माइक्रोपाइल। माइक्रोफाइल। अच्छा हाँ तो ठीक है। फ्यूनिकल तो स्टॉक होता है ना आदित्य। हाँ याद है, याद है। हाँ डी क्या है बोलो? इसमें क्या डायग्राम है? इंटेगुमेंट्स। डी प्रॉपर इंडेगमेंट। दिख नहीं रहा बट इंटेगुमेंट्स है। इनर वाला, ठीक है, इनर इंटेगुमेंट है बी। इनर और आउटर इंडेगमेंट, ठीक ई है। क्या है? आउटर इंटेगुमेंट है। आउटर इंडेगमेंट। एफ क्या है भाई? ये कहाँ लेबलिंग कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। कहाँ है ये? छोड़ो, और ये जाने सब दो, क्या है? आप प्रैक्टिस कर लेना, जाने दो। अब मुझे 81 बताओ। ओव्यूल इज अटैच्ड टू प्लेसेंटा बाय ओव्यूल इज अटैच्ड टू प्लेसेंटा बाय, अरे फिनिकल। बाय स्टॉक ना। स्टॉक का नाम क्या है? कॉल्ड फिनिकल। फ्यूनिकल। द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेस विद द फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड। हाइलम। वेरी गुड। ओव्यूल हैज हाउ मेनी इंटेगुमेंट्स? टू। फंक्शन ऑफ इंटेगुमेंट्स?
प्रोटेक्ट एनवोलेप कुछ तो था, एनवोलेप कर देता है उसको, प्रोटेक्ट करता होगा। हाँ, प्रोटेक्शन भी लिख सकते हो ना आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ प्रोटेक्शन। 85 बताओ ये इंटीग्यूमेंट्स। माइक्रोपाइल है। वेरी गुड, माइक्रोपाइल वहां पे पोर होता है, और राइट? उसके बाद वाला चलाज़लैंड। Yes, great. Micropyle represents the माइक्रोपाइल basal part of the ovule. True or फॉल्स। false? False. फॉल्स। Chalaza end दैट इज, represents the basal part, right? हाँ दैट इज enclosed within the ovule is enclosed Very, within the very good. Ovule. ठीक है। डायग्राम देख सकते हैं। आप बताओ A क्या है? इसमें ए, अच्छा ये हाँ, तो एक कॉकरोच जैसा दिखता है ना। हाँ। इसमें ए एंटीपोडल नहीं, 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 तीन है ना सही है, ऊपर, सही है, तो सही तीन है। एंटीपोडल है। हाँ हाँ, याद आप बताओ B क्या है? है। बी तो वो पोलार बॉडी। C क्या है? पोलार बॉडी। क्या बोले? ई। C, C. सी। सी किधर है? अच्छा ये बीच का, बीच है सी पे। C is what? साइटोप्लाज्म होगा, क्या होगा याद नहीं आ रहा। Nucleus. न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। D is what? ये सब डायग्राम है क्या? डी। Egg cell. एग सेल इतना, हम लोगों को तो डायग्राम ऐसा उल्टा डायग्राम बनाया था हम लोगों ने, तो उल्टा ही है। Synergids. टी सिनर्जिड है। एफ वो है, apparatus होता है उसके ऊपर, क्या बोलते हैं उसको? Filiform apparatus. टेलीफॉर्म apparatus। Correct. Right? 90. Female हम्म। gametophyte is also called what? और मेगा, नहीं नहीं नहीं, फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो कॉल्ड फीमेल गैमेटोफाइट, इसमें गैमेट होता है तो Hmm. ओवरी। Embryo sac. एम्ब्रियो सैक का ओवरी, एम्ब्रियो सैक होता है, क्या बोलते हैं? सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस। ट्रू। Embryo sac, na? Cells of the nucleus is abundant. True. An ovule generally एंड has a ओवरी, single embryo sac. एंड ओवल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक, एक ओवल का एक सिंगल एम्ब्रियो सैक होता है। ट्रू। नहीं, एक से ज्यादा हो सकता है। अरे एक से ज्यादा? सर नहीं मेरे नहीं, को सॉरी। एक डाउट ये बताओ अच्छा, कि वो सॉरी जो, सॉरी सॉरी। ट्रू ही आएगा। ये तो एक ट्रू है। ओव्यूल में हाँ एक ही एम्ब्रियो सैक होता है। हाँ हाँ, एक में एक ही हो मेरे सकता है। को, एक ओवरी के हाँ अंदर ज्यादा ओव्यूल हो सकता है, ठीक है? एक ओवरी के अंदर ज्यादा ओवरी। हाँ, सर मेरे एक को एक ये डाउट बताओ ना कि जैसे एक एनसीईआरटी में लाइन है ना कि जो भी मेगास्पोर मदर सेल होता है हम्म। वो चलाजल एंड के पास होता है ना, कि माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल माइक्रोपाइलर एंड एंड। के पास होता है ना? हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि उसी साइड से पॉलन ट्यूब एंटर और करेगा। हाँ, और वहीं से एक ही होता है बस। हाँ, एक ही होता है। यस, दिस इज ट्रू। ठीक है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट कौन है? हो गया मेरा, सर जाऊं? मार दूंगा मैं, आगे ध्यान दो पूरा। ठीक है। हाँ, हु इज नेक्स्ट? अयूब। Yes, sir. हाँ अयूब, मुझे बताओ नेक्स्ट Microgravity. क्या आएगा? Ovules Micro. generally differentiate a single mother cell, megaspore mother cell from the chalaza. कौन से साइड? माइक्रोपाइलर साइड। यस। माइक्रोस्पोर मदर सेल हैव थिन और डेंस साइटोप्लाज्म। और Dense. कैसा न्यूक्लियस? डेंस साइटोप्लाज्म एंड, Inconspicuous. नहीं नहीं, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है ना। Prominent. हम्म। Meiosis results in production of how many megaspores? अब बनते तो चार है बट सरवाइव एक ही करता है। हाँ, 4 बनेंगे। वो सिर्फ सवाल पूछे है ना, क्या पूछा उन्होंने? कितने बनेंगे वो पूछा है। तो 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, आउट ऑफ 4 हाउ मेनी मेगास्पोर्स आर फंक्शनल? One. यस। टेल मी व्हाट इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट? मोनोस्पोर एक सिंगल स्पोर। परेशानी बड़ी हो जाती है। एक सिंगल ओव्यूल और सिंगल एग डेवलपमेंट। हाँ, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होता है? if a if an embryo sac develops from a single
single megaspore mother cell, right? चावल मछली में मना करा, Yeah. चावल आलू एक सब मिल मेगास्पोर गया। मदर सेल से क्या अब जो बनेगा मिल अगर जाता है तुम्हें जो देती वो सिंगल खाए। ओवरी, एक ही उसे क्या single कहते हैं? हम लोग कहाँ से हाँ, लेंगे? मोनोस्पोरिक। रोटी बनाएंगे। 98 बताओ, the nuclear लोग divisions तुम लोग in the के- functional तुम megaspore लोग are की free मेहरबानी nuclear, की। true or false? तुम लोग का जरिया लगाया अल्लाह ने, कोई कुछ भी What नहीं does करता free है। nuclear division means? चावल मना करते हो। Without karyokinesis. हाँ, Oh, egg sorry, apparatus। cytokinesis. हाँ, मतलब कैरियोकाइनेसिस विदाउट अल्लाह का साइटोकाइनेसिस। शुक्र है, बस पी रहे, पड़ी रहे। Tell me, egg apparatus consists of? 2 synergids and 1 egg with Feliform apparatus. Very good. Egg apparatus is present at what side? Micropylorium. Synergids have special cellular thickenings at the micropylar tip called as? Feliform apparatus. Very good. Dash number of cells are present in the chalaza end and are called? 3 antibodies. Very good. Function of filiform apparatus is? To guide pollen tube to the egg. A typical angiosperm embryo sac at maturity shows 7 nucleated 8 cell stage. True. चावल से ज्यादा बढ़ती है। Sorry sir, 8 nucleated or 7 cell. This is 7 celled, 8 nucleated, right? सब मिल लेके आ जाओ। False. Pollen grains are non-motile, true or false? सब मिल True. Okay, depending on the source of pollen, the 3 types of pollination are? Abiotic, biotic. Are you? Depending on the source of pollen. हाँ, कहाँ से आ रहा है? ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी एंड अच्छा वो एंजीनोगैमी। Xenogamy. हाँ, depending, figure 10 represents a plant with 2 types of flowers. Identify the types of flowers A and B. Jastrogamus and Clastogamus. Very good. Yes. कैस्मोगैमस खुल गए हैं और क्लिस्टोगैमस अभी भी बंद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एग्जाम्पल ऑफ Yes. ऑटोगैमी आर? ऑटोगैमी के एग्जांपल यूं थे कुछ तो एक तो ओसी कुछ था और एक वीओसी याद रखो, वीओसी ट्रिक। वायोला इतना और एक ऑप्सिला क्या था, ऑक्सैलिस। ऑक्सैलिस एंड कॉमेलिना, राइट? यस सर। Tell me, in a flower which opens and exposes anther and stigma, complete autogamy is almost always present. ट्रू। नहीं, in a flower which opens and होगा ना सर। हाँ हो जाएगा, सॉरी भाई जल्दी है। ये चेक करना आगे पड़ेगा, मत बढ़ना। डाउट लग रहा है मुझे। Autogamy requires synchrony between what? the pollen ना pollen release और stigma reception something ऐसे ही। हाँ, stigma receptivity and pollination. pollen release। हाँ। Stigma receptivity. In Chasmogamous flowers, anther and stigma lie close to each other. तो हाँ ठीक है। Clistogamous या फिर Chasmogamous flowers are invariably autogamous. True or false? अरे सॉरी, क्या है इसमें? Jastrogamus। हाँ, क्योंकि नहीं, क्लिस्टोगैमस ना, Clastogamus हाँ। क्योंकि क्लिस्टोगैमस बंद ही रहेगा तो वहां पे कोई चांस ही नहीं है कि क्रॉस पॉलिनेशन हो सके। हाँ। Cleistogamy is disadvantageous as there is no chance for cross pollination. True or false? True। True. Dash flowers produce a short seed set even in the absence of pollinators. Clastogamus। Yes. क्या? One. ठीक है, हाँ, क्लिस्टोगैमी। What is Geitonogamy? Geitonogamy is the transfer of pollen from one flower to another. Geitonogamy is functionally autogamy या फिर cross pollination? Autogamy या similar to। functionally, क्योंकि एक ही plant से आ रहा है, right? ठीक है, Geitonogamy is genetically similar to autogamy या cross pollination. Obviously autogamy. बहुत जरूरी है। Who is next? डॉक्टर ने बोला मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट का ब्रेक। अरे यार बाय सर।
Yes, Dhruva. सर Tell me the next one. Only type of pollination which brings genetically different types of pollen grains to the stigma is. Hello. जीनोगेमी ठीक है. 2 abiotic and 1 biotic agents for pollination are what? बायोटिक में एनिमल्स, एबायोटिक में विंड और पानी वाटर. ठीक है. Majority of plants use abiotic या biotic, कौन सा? बायोटिक. हेलो. हाँ, biotic. Very good. Pollination by dash is more common amongst abiotic pollinators. विंड विंड रहेगा. ठीक है. When pollinators produce sticky pollen grains so that they stick to stigma. True or false? स्टिकी नहीं होता ना. नॉन स्टिकी वाला, अरे नहीं, नॉन स्टिकी वाला फॉल्स है. नॉन स्टिकी वाला फॉल्स आएगा. False. क्योंकि ये उड़ सके ना. Pollen grain of wind pollinators is light. ट्रू. Feathery stigma and well exposed stamens are feature of विंड पॉलिनेशन. wind pollinators have how many ovules in the ovary? एक. ठीक है. Packed inflorescence is not a feature of wind pollinators. True or false? पैक कैसे रहेगा? हाँ, क्योंकि खुला रहेगा तभी तो होगा. यस. Dash of corn cob are stigma and style which wave in the wind. क्या वो कैसल नहीं रुको, नहीं याद नहीं आ रहा. Corn cob के क्या? टेसल्स. Tassels. Example of wind pollinations are. अरे ये भी पूछ रहे हो. अभी बताया आपने. कौन कौन नहीं रहेगा, कौन जाएगा? हाँ, ठीक है. और कौन? वो घास भी जाएगी क्या? ग्रास. Wheat. अरे यार Right. मेरे को पसंद नहीं है चैप्टर. क्यों नहीं पसंद है? मैं एब्सेंट थी एक लेक्चर. मुक्का मार दूं. एब्सेंट रहते हो फिर बाद में रिग्रेट करते हो. वर्चुअली मुक्का मारोगे. हाँ. 130. Pollination by water is limited to dash number of genera. एक तो मोनोकॉट होता है और 30 genera of aquatic plants. Pollination by water in a plant is shown in question. ठीक है. Identify the plant species A, B, C, D. What is A? क्या पूछ रहे हो? ये मेरे को दिख भी नहीं रहा. Question. ये डायग्राम में फ्लावर है. A वाला का एग्जांपल. A क्या है? बी स्टिग्मा है. क्या है ये डायग्राम? हाँ, ठीक है. C. मेल और फीमेल फ्लावर है क्या? C क्या है? सी मेल फ्लावर. हाँ, देखो ना, स्टिग्मा के पास जाएगा ना ऐसे. हाँ सही है. तो डी फीमेल फ्लावर, हम्म ए भी फीमेल फ्लावर. ठीक है. Distribution of bryophytes, algae and pteridophytes is limited because उनको they need water. पानी लगता है फर्टिलाइजेशन वगैरह के लिए. Yes. Example of fresh water pollinated plants are दिला और दूसरा वाला मुझे याद नहीं. water hyacinth. नहीं, sorry. वाटर हायासिंथ, लिली. और इसमें क्या आएगा? ठीक है. What is the example of sea grass? जूस्टेरा और जूस्टेरा और क्या था? ठीक है, एक ही है ना. Aquatic plants not pollinated by water are अरे टेरर ऑफ बंगाल, वाटर हायासिंथ, वाटर लिली. लोटस भी होता है ना. हाँ, ठीक.
In याद dash, नहीं female flower reach to the surface of water. हमको याद नहीं है ये वाला, किसमें? याद नहीं आ रहा है। वेलिस्नेरिया, एपीहाइड्रोफिली। हाँ एपीहाइड्रोफिली में क्या होगा ना, पॉलन ग्रेन फ्लोट करता है, जिसकी वजह से फीमेल फ्लावर को सरफेस ऑफ वाटर पे आना पड़ता है ताकि वो पॉलन ग्रेन को ले सके। 138 का क्या आएगा? in seagrasses, Submerged in the female water. flowers, seagrasses, Zostera, right? In dash, epihydraphily is present. वेलिसिनेरिया। ए नहीं, एक मिनट, हाँ, वेलिस्नेरिया। This is out of syllabus, textbook में दिया है। मैंने ठीक है। कैसे बोला? 143. In most of the water pollinated species, pollen grains are protected from wetting by एक कवरिंग होती है ना वो, mucilage की covering. कवरिंग। ठीक है। Flowers are brightly colored in wind and water pollinated plants. True or false? फॉल्स, फॉल्स। Common biotic pollinating agents are अरे हाँ हाँ हाँ, वो एनिमल्स ना सारे, हम्म, बटरफ्लाई, बीस, मॉथ और एंड्स, bats, birds, बीटल्स, snails, etc. Right? ठीक है, ये इतना important नहीं। Dash are the dominant biotic pollinating हनी बी, agents. हनी बी। Example of lizards reported as pollinating agent is एक गार्डन लिजार्ड होती है, एक लिजार्ड होती है, कौन सी लिजार्ड होती है? हाँ बस। primate. Primate reported as pollinating agent is कौन सा primate pollination करवाता है? अरे ये लाइन याद थी मेरे को, लेम्यूर, लेम्यूर, लेम्यूर। ठीक है ना, पॉलिनेशन पे सवाल पूछा है ये लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट। Arboreal rodents can't act as pollinating agent. True or false? Arboreal rodent मतलब जो पेड़ पे रहने वाले एनिमल्स हैं। नहीं नहीं, फॉल्स। What happens when insect pollinated flowers are small? Pollination does not occurs, नहीं? अच्छा ठीक है। Animals are attracted to flowers by वो एक तो उनमें कलरफुल होता है वो, और फ्रेग्रेंस, कलरफुल और फ्रेग्रेंट होता yes, flowers produce foul odor to attract है। इंसेक्ट्स, एक flies मिनट, and beetles. फ्लाइज एंड बीटल। Tallest flower, ये सब नहीं याद करना है, सब सिलेबस से बाहर है। क्यों दिया है? ठीक है। 158. Yucca and dash cannot complete their life cycle with each other. यू कैन मॉथ, Moth deposits its eggs in the dash of ovary. सेंटर में, लॉक्यूल, ठीक है। Moth deposits, अच्छा, define nectar robbers. अरे हाँ, क्या था? Without bringing pollination, if somebody bringing any pollination, about if somebody pollination and if consuming pollen or nectar, such floral visitors are called pollen. majority of flowering plants are unisexual. True or false? नहीं, false है। ज्यादातर bisexual. Continued self pollination results in Inbreeding depression. poor outbreeding devices are Self incompatibility. dichogamy, Dichogamy. hercogamy, yes or no? Self incompatibility and unisexuality, right? Unisexuality prevent what? Autogamy, right? But not ऑटोगैमी तो प्रिवेंट कर लेंगे, जीटीओनो नहीं कर पाते। पपाया मोनोशियस है या डाइशियस है? डायोशियस है। मोनोशियस के एग्जांपल क्या है? कैस्टर और मोनोशियस wheat, maize. बाइसेक्सुअल,
वीट नहीं, वीट तो मोनोकॉट है ना, सॉरी हाँ। मनोज इसके एग्जांपल। कैस्टर हम्म, और ठीक है। वीट नहीं है। 167। नेक्स्ट कौन है? ध्रुवी ध्रुवी। हाँ सर। हाँ, टेल मी 167 पॉलिनेशन गारंटीज ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन। क्या पॉलिनेशन ये गारंटी करता है कि सही पॉलन ग्रेन जाएगा, या फिर पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन करता है? नहीं false है। False, right? Pistil cannot recognize whether pollen is of right type or not. True or false? क्या पिस्टल पहचान नहीं पाता कि पॉलन ग्रेन सही है या गलत है? पहचान पाता है ना वो उसको। हाँ, तो false. In two-celled pollen, the generative cells divides during pollen सर pistil ये नहीं interaction. पता। अच्छा देखो ना, ऐसे एनिमल्स, सॉरी ऐसे पॉलन ग्रेन जो दो सेल स्टेज उनका फाइट करता है, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के टाइम पे ही करता है, राइट? टेल मी 170 pollen tube enters ovule through chalazal या फिर micropylar? माइक्रोपाइल। Yes. Dash guides the entry of pollen tube. कौन गाइड करता है एंट्री ऑफ pollen tube? जंप नहीं, pollen tube तो जम्पुर से ऑलरेडी निकल चुका है। ओव्यूल के अंदर कौन गाइड करता है? फीलीफॉर्म apparatus. अच्छा To study pollen germination, a drop of -% solution. 10% ना solution of sugar is taken pollen grain की germination को study करने के लिए। क्रोटेलेरिया के pollen grains को स्लाइड पे स्टडी नहीं कर सकते, कर सकते हैं, फॉल्स है ये। आफ्टर वेटिंग फॉर डैश टू डैश मिनट pollen grains are studied under लो या हाई माइक्रोस्कोप। कितने देर के लिए वेट करना होगा? 15 to 30 मिनट। 30 मिनट्स। कौन से माइक्रोस्कोप में देखना होगा? कौन से पार में? लोअर लेंस। व्हाट इज emasculation? वही ना, रिमूवल ऑफ Anther. एंथर। Yes, well before anthesis, right? Emasculated flowers are covered with a bag of dash buttercup. ये important है हाँ, ये क्वेश्चन। बटरकप, बटर पेपर बोलते हैं, बटर पेपर, राइट? इस प्रोसेस को हम बैगिंग कहते हैं, बैगिंग। हाँ There is need for emasculation in flowers. No need for emasculation in flowers. True or false? सॉरी यूनिसेक्सुअल फ्लावर। हाँ, unisexual. Dash stages in embryo development in dicot plant is shown in figure. Identify A to F. What is A? ग्लोब्यूलर Very good. B. और हार्ट शेप और ये मैच। C. C क्या है? Suspensor cells. स्पेंसर सेल। D क्या है? और डी रे- कॉटन का क्या है ये? नहीं, रेडिकल ना। रेडिकल हाँ। E is cotyledon and F is what? Primule. Triple fusion happens in double fertilization. True or false? डबल फर्टिलाइजेशन। हाँ, पोलर न्यूक्लियाई और दूसरे मेल गैमेट का ट्रिपल फ्यूजन होता है। ट्रू। Pollen tube release two male gametes into the cytoplasm of synergids. True or false? हाँ ट्रू ही है। The male gametes fuse with dash and dash. Egg and एग सेल और पोलर न्यूक्लियाई। dash is an event unique to angiosperms. True or क्या है? और Double यही fertilization. हाँ। डबल फर्टिलाइजेशन। Central cell after fusion becomes सेंट्रल सेल। हाँ एम्ब्रियो से सब्स्टिट्यूशन।
embryo sac after fusion becomes याद नहीं आ सेंट्रल रहा सेल मतलब पेन क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म. अच्छा हाँ एंडोस्पर्म सस्पेंसर ग्रो टू पुश एम्ब्रियो अवे फ्रॉम चलाजल या फिर माइक्रोपाइलर. कौन सा है? ये नहीं है सिलेबस में, ये सब जाने दो, बकवास पूछो. टेल मी अबाउट एंडोस्पर्म. एम्ब्रियो डेवलपमेंट प्रीसीड्स एंडोस्पर्म डेवलपमेंट. ट्रू और फॉल्स? हाँ ट्रू एम्ब्रियो डेवलपमेंट प्रीसीड्स एंडोस्पर्म मतलब अच्छा नहीं रुक जाओ एम्ब्रियो पहले डेवलप होता है. नहीं, तो पहले क्या डेवलप होता है? पहले एंडोस्पर्म डेवलप होता है फिर एम्ब्रियो होता है. सर वही तो बोला मैंने. So this is false, ना? हाँ Most common type of endosperm development is ये क्या कहते हैं इसको प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. endosperm is used for dash the developing embryo. सर अरे ये false एंडोस्पर्म का इस्तेमाल नरिशिंग के लिए होता है ना, नरिशिंग. फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के एग्जांपल क्या हैं? सर ये तो याद नहीं है. कोकोनट वाटर ना ध्रुवी. फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कोकोनट वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बनता है. एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन मतलब नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जांपल बताओ. पी, वही ग्राउंडनट, बीन एटसेट्रा. हाँ एंडोस्पर्म परसिस्ट इन मैच्योर सीड्स. जिन ऐसे कौन से एग्जांपल्स हैं जिनमें एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है? मतलब एंडोस्पर्मिक के बताओ. कैस्टर मैं कोकोनट. अच्छा एंडोस्पर्मिक वही कैस्टर कोकोनट वही ना. हाँ एंडोस्पर्म परसिस्ट. हाँ सही है. एंडोस्पर्म परसिस्ट इन सीरियल्स. ट्रू और फॉल्स? हाँ ट्रू है ना. A typical dicot embryo shown in question diagram question 13. ठीक है, ये सब तो कर लेंगे आप. ये वाला कर लेना आप लोग. 196 बोलो. Embryo develop at what end of the embryo sac? Micropylar या चलाजल? माइक्रोपाइलर. याद रखो सारी चीजें माइक्रोपाइलर साइड ही होती हैं. ये ट्रिक है. अच्छा ठीक है. Zygote division is independent of the amount of endosperm present. False. It depends. क्योंकि जितना न्यूट्रिशन रहेगा तभी तो वो डिवाइड करेगा ना प्रॉपर. The early stages of embryogen is different in both monocots and dicots. False. सेम होता है. शुरुआत के स्टेजेस सेम होते हैं, बाद में अलग होने लग जाते हैं. The stages of embryogeny from zygote to mature embryo are वो जो 4 स्टेज थे वो ग्लोब्यूलर वो वाला प्रो एम्ब्रियो ग्लोब्यूलर. yes zygote, फिर प्रो एम्ब्रियो, फिर ग्लोबुलर, फिर हार्ट शेप, फिर मैच्योर एम्ब्रियो. हॉर्सशू शेप. यस और नो? यस सर. ठीक है. embryonal axis above the level of attachment of cotyledon is what? cotyledon से ऊपर क्या होता है? एपिकोटाइल. और नीचे क्या होता है? हाइपो. yes एपिकोटाइल terminates with what? एपिकोटाइल टर्मिनेट्स विद कोलोटाइल. एपी ऊपर का किसमें टर्मिनेट होगा? लिम्यूल में, राइट? हाइपोकोटाइल सिलिंड्रिकल होता है. दिस इज ट्रू. हाइपोकोटाइल किसमें टर्मिनेट होगा? रेडिकल में. नीचे वाली चीज रेडिकल बनाएगी, ऊपर वाली चीज लिम्यूल बनाएगी. ठीक है. रूट कैप. रेडिकल कैसा होता है? ग्रास फैमिली मतलब वही ना. सर मैं एब्सेंट थी उसमें तो मुझे नहीं पता. ठीक है ध्रुवी, ये पढ़ लो ध्रुवी. ठीक है. मेरा किस दिन एक्स्ट्रा टाइम रहेगा या फिर मैं आऊंगा ना तो आपको ये एनसीईआरटी रीड करा दूंगा. सर एक्सक्रीशन करा दो.
वो हुआ नहीं ध्रुवी, कितनी बार तो करा दिया मैंने। सर आपने एक ही बार कराया, उसमें भी पूरा नहीं हुआ। अच्छा, तो जब रिवीजन लिया था तब थे आप उसमें? हाँ तब थी, लेकिन आपने बहुत जल्दी जल्दी बता दिया तो इतना समझ में नहीं आया। ठीक है ध्रुवी, मैं करा दूंगा, बचाओ। ठीक है सर। सर पहले इवोल्यूशन तो करा दो, ये सब बाद में करा ना, पीछे हम लोग बायो में। हाँ हाँ करा दूंगा मैं, टेंशन ना लो। सर सहल। लीव क्या? हाँ चलेगा। सहल। Yes, sir. Yes, tell me, 2206. In grass family, cotyledon is what shaped? Which, sir? 206 one. Scutellum, right? Yes, sir. Scutellum is situated on dash side of embryonal axis. Lateral. In monocot, root is enclosed in? Root cap किसमें Colergia. enclosed? Colergia. Coleorhiza, Colerisa. coleorhiza, right? Yes, sir. Coleorhiza is differentiated sheath. Differentiated होता है या undifferentiated होता है? Undifferentiated होता Undifferentiated. है. Epicotyle and a few leaf primordial are enclosed inside. Coleoptile. ठीक है. Yes, tell me about seed. Dash is the final product of sexual reproduction. Seed, right? Oh, yes, sir. Fertilized ovule. Ovule fertilized होकर क्या बनाता है? Seed. Typical seed contains what? Dash, dash, and dash. Seed coat. Very good. Seed coat. Embryonal Axis. axis or cotyledons. ठीक है. Structure of some seeds are shown in figure A to F. ये लेबलिंग वाले बाद में कर लेना, ठीक है? आप लोग घर पे करो. Tell me 216. Non-albuminous seeds does not have what? Endosperm. Endosperm. Residual resistant persistent nucellus is called perisperm. Perisperm. Non-albuminous seeds के example are what? PR groundnut. Yes. Albuminous seed के example is what? Wheat, maize, castor, barley. Perispermic seeds example beetroot. Black pepper or beetroot. ठीक है. X-albuminous means a seed that contains what? Albumin. True or false? False. False. Albumin नहीं होता. X-albuminous में albumin नहीं होता. Yes, sir. Integuments of ovules develops into? Seed coat. Very good. Micropyle remain as a small pore in the seed coat. True or false? Yes, sir. True. As the seed matures, seed becomes dry or moist, and then dry. They contain dash to dash percentage of moisture by mass. 10 to 15% or dry. Yes, they are dry. Dash facilitates the entry of water and oxygen for germination. Micropyle. The transformation of ovules into seed and ovary into fruit proceeds simultaneously. True or false? True. Wall of fruit is called? Pericarp. Mustard fruit is fleshy or dry? Dry. Groundnut fruit is fleshy or dry? Dry. Is there any relationship between number of ovules in an ovary and the number of seeds present in a fruit? Yes. Yes, sir. Define false fruit. That develops from parts other than ovary, right? Yes, sir. Example of fruits which develop from thalamus are? Strawberry, apple or cashew. Cashew. False fruits of apple and strawberry are shown. ये जाने दो. ये आप करो हाँ बाद में practice. ठीक है sir. What is the example of parthenocarpic fruit? Banana. Banana. Dash is the basis of our agriculture. Seed. Dash and dash of mature seeds are crucial for storage. Dehydration and Dormancy, yes. Seeds of large number of species lose viability within few months. True or false? False. Several years के लिए रहते हैं. Yes. Only some seeds can remain alive for hundreds of years. True. The oldest viable seed is of?
Lupinus arcticus. Lupinus arcticus, excavated from Arctic tundra. Arctic tundra. The seed of lupine germinated after dash years of dormancy. 10,000. Yes. Seed of a date palm, namely what? Phoenix dactylifera, right? Had a Yes, sir. viability of how many years? 2,000. It was discovered at King Harold's palace near Dead Sea. Dead Sea. Plants having fruits with large number of tiny seeds, example are Orchids. Orobanche. Striga ficus. ठीक है. Dash and dash are parasitic plant species in which each fruit contains thousands of tiny seeds. Orobanche and Striga. ठीक है. Who is next? मैं हूँ सर. सोनाली तबीयत ठीक नहीं है. ठीक है सर. What is apomixis? Production of seed without fertilization. Apomixis is present in किसमें दिखता है apomixis? Grasses. और हाँ, किसमें and दिखता है? sunflower family, Asteraceae, right? Okay. Apomixis is a form of sexual या asexual reproduction that mimics sexual reproduction. मतलब ये हाँ. form of क्या है? Asexual, जो किसको mimic करता है? Sexual को. Sexual reproduction को. Diploid egg formation without reduction, division, and development into embryo can be called apomixis. True. हाँ. One true ovule है. contain many embryos. True or false? True. Can True contain, right? It can contain. Yes. What is polyembryony? Yes. Many embryos, क्या right? ये? हाँ. More than one embryo होता है. Nucellar polyembryony examples are what? Nucellar, जिसमें nucellus से बनता है. पता. Citrus and orange. ये बहुत इंपॉर्टेंट है सोनाली, Okay. याद रखना आप. ठीक है सर. ठीक है. The hybrid characters do not segregate in the progeny plants. False. ये false. Apomictic seeds can reduce the cost of production for farmers. True. Yes. True. Why seeds of orchids symbiotically associate with mycorrhiza? क्या है ये ये सिलेबस सर? में नहीं है. नहीं है, ये भी नहीं है, जाने दो. ठीक है. We'll stop over here, right? Yes sir. ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ो. Prepare for test.